Hello everyone, welcome to our YouTube channel Niche Classes. Here we will discuss about science of ETT cadre. So our first topic is motion. Motion ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਤੀ। ਗਤੀ मतलब ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, मूव ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, अ बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਬਦਲੀ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਟਰਮ। ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਫੋਲਸ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ। ਯੈਸ, ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮਸ। For example, a body appearing to be at rest to one person may appear to be in motion to another person. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਰੈਸਟ 'ਚ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਜੋ ਪਰਸਨ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ ਬੱਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਜੋ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਪਰਸਨ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਟ ਜੋ ਪਰਸਨ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी मतलब क्या है कि तुसी ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਰੂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਗਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪਲੱਸ ਆ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ,
ठीक है। तुसी चल रहे हो, अगर तुसी मूव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इत्थों तो इत्थे तक मूव किया, इत्थों तो इत्थे तक चाहे थोड़ा जा मूव किया, चाहे एक कदम चले बट चले तुसी तो पॉजिटिव च आऊगा। ठीक है, नैगेटिव कदे भी नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आऊगा। जीरो तो डिस्टेंस हमेशा जीरो तो बड़ा होगा अगर तुसी मूव कर रहे हो। नैक्सट है स्पीड। स्पीड की होंगी है रेशो, किस चीज़ की रेशो, डिस्टेंस कवर, जो तुसी डिस्टेंस कवर किया उसकी रेशो किस नाल, टाइम टेकन, किन्ने टाइम दे विच तुसी डिस्टेंस कवर किया है उसकी रेशो नूं आपां की बोलते हैं स्पीड। इसनूं दूजे तरीके नाल भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जिथे किते भी रेट ऑफ वर्ड यूज आ जाए रेट ऑफ चेंज, तो इसका मतलब की है कि वह चीज़ हमेशा टाइम के विद रिस्पैक्ट टू चेंज हो रही है, उसकी रेशो आप टाइम के नाल ले रहे हैं अगर रेट ऑफ चेंज वर्ड आ जाए। ठीक है, सो डिस्टेंस चेंज हो रहा है किस दे अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, तो उसनों भी आप स्पीड कहांगे। इसका फॉर्मूला की होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस नूं आपां स्मॉल एस नाल लिखते हैं, तो टाइम नूं आपां स्मॉल टी नाल लिखते हैं। ओके, नैक्सट है यूनिट। यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड दी यूनिट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि यूनिट एज MCQ आ सकती है पेपर दे विच, है ना। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होंगी है मीटर पर सैकेंड। मीटर पर सैकेंड, देखो डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, डिस्टेंस नूं आपां मीटर च मेजर करांगे, टाइम नूं किच मेजर करांगे आपां सैकेंड दे विच। ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सैकेंड। ठीक है, वैसे तो इसकी SI यूनिट किलोमीटर पर आवर भी है, बट अगर एज अ बेसिक यूनिट मन्नांगे, बेसिक यूनिट इसकी हमेशा आपां मीटर पर सैकेंड ही मन्नांगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुहानूं क्वेश्चन आंदा है, क्वेश्चन दे विच तुहानूं ए वाली ऑप्शन भी है तो ए वाली ऑप्शन भी है, तो तुसी मीटर पर सैकेंड ही ऑप्शन लगा के आओगे। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछ रहे ने यूनिट ऑफ स्पीड की होंदियां ने ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ मीटर पर सैकेंड ही लगा के आना है। अगर CGS सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ सेंटीमीटर पर सैकेंड ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बट SI सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ या बेसिक यूनिट इस दी मीटर पर सैकेंड ही ਹੁੰਦੀ है। नैक्सट की है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अपने को स्पीड की है एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी सी ते स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड नूं आपां किहदे विद रिस्पैक्ट टू देख रहे हैं, डिस्टेंस दे विद रिस्पैक्ट टू देख रहे हैं। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब कि यह कदे भी नैवर नैगेटिव, कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आपां ने कितना सीगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो स्पीड भी की होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, इट इज़ जीरो, ये जीरो कदों होगी, स्पीड जीरो कदों हो सकती है, वैन बॉडी इज एट रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट च है। ठीक है, अगर वो मूव ही नहीं कर रही, अगर आप बैठे हाँ एक पोजीशन ते ही बैठे हाँ तो अपनी स्पीड की है जीरो, क्योंकि आप मूव ही नहीं कर रहे, कोई डिस्टेंस ही नहीं आपने कवर किया। ठीक है, कुछ गए ही नहीं, तुरे फिरे नहीं है, तो अपना की होगा, अपनी स्पीड जीरो होगी। ठीक है, ये टॉपिक मैं मेन पॉइंट टू पॉइंट ही करवा रही हाँ ताकि तुहाडे लई ज़्यादा बेनीफिशियल, जिन्ना ज़्यादा आप डीप च करांगे उन्ना ही तुहाडे लई की होगा, तुसीं उन्ना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है, इसीलिए जिन्ना पॉइंट टू पॉइंट किया जाए या फिर ये उन्ना लई ज़्यादा बेनीफिशियल है जिन्ना दा साइंस बैकग्राउंड नहीं हैगा, जिन्हों ने सिर्फ 10th तक ही साइंस की, उस तो बाद साइंस नूं टच भी नहीं किया। ठीक है, नैक्सट है डिसप्लेसमेंट। जिमें डिस्टेंस होंदा है उवें डिसप्लेसमेंट होंदा है, बस ये थोड़ा जा फर्क की है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड फ्रॉम इनीशियल टू फाइनल पॉइंट। इनीशियल मतलब तुहाडा स्टार्टिंग पॉइंट, तुहाडा स्टार्टिंग पॉइंट जिथों तुसीं स्टार्ट किया है, फाइनल पॉइंट मतलब की है, हुण तुसीं इत्थों चले हो, ए पॉइंट तो चले हो, ए पॉइंट तो चल के बी पॉइंट ते गए। ठीक है, बी पॉइंट तो चल के तुसीं सी पॉइंट ते गए, फिर तुसीं वापिस बी पॉइंट ते आ गए, वापिस इत्थे आ गए, हुण तुसीं इत्थे खड़े हो, तो जिहड़ा तुहाडा इत्थों तो बी तक दा जो एक्चुअल च ए तो बी दे विच दा डिस्टेंस होगा, इन्हां दोनों दे विच दा डिफरेंस होगा। ठीक है, आ पॉइंट होगा, यह तुहाडा डिसप्लेसमेंट है। तुसीं कहोगे असीं चले तो ए तो बी तो सी, दोबारा फिर बी ते आए सी। ठीक है, हाँ गए सी, बट यह डिस्टेंस होगा। डिसप्लेसमेंट का की है, तुसीं फाइनल स्टार्टिंग तो इत्थे सी, फाइनल ते तुसीं इत्थे हो, बस इन्हां दोनों पोजीशन दे विच जिन्ना डिफरेंस है
सीधा स्ट्रेट डिफरेंस होगा ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बस यही फर्क है कि होगा डिस्टेंस ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ C ਦੁਬਾਰਾ B, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ डिस्टेंस ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यह शॉर्टेस्ट पाथ होगा इन अ पर्टिकुलर डायरैक्शन। तो डायरैक्शन भी अपन पता है ए तो बी दे विच ही है, बी तो ए नहीं लैनी, ए तो बी दे विच ही डायरैक्शन है तुहाडी। इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, यह एक वैक्टर क्वांटिटी है। वैक्टर क्वांटिटी का मतलब की हुंदा है कि तुहाडे कोल डायरैक्शन भी है पर्टिकुलर तो तुहाडे कोल मैगनीट्यूड, मैगनीट्यूड का मतलब कि मान लो तुहाडे विच डिफरेंस ए तो बी का 10 है, तो 10 की हो गया मैगनीट्यूड हो गया, 10 मीटर का डिफरेंस है तो 10 की हो गया तुहाडा मैगनीट्यूड हो गया। तो डायरैक्शन की है ए तो बी वाल नूं, आपां ऐ नहीं कह सकते सी बी तो ए वाल नूं गए। ठीक है, बी तो ए वाल नूं डिफरेंस -10 हो गया, माइनस का फर्क पै जाऊगा। इट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नैगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो क्यों है, मान लो तुसी जीरो कदों होगा, फॉर एग्जाम्पल तुसी ए तो गए बी तक, या फिर ऐ ला लो तुसी घर तो होम तो स्कूल गए हो, होम तो स्कूल गए, वापस स्कूल तो होम भी तो आओगे, तुसी गए होम टू स्कूल, स्कूल टू होम भी तो वापस आओगे, तो तुहाडी स्टार्टिंग पोजीशन भी यही सी, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो तुहाडा डिस्प्लेसमेंट की आ गया, जीरो आ गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ इत्थे लिखनी रहेगी कि है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा वड्डा हो या बराबर हो, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੀ ਤੋਂ, डिस्प्लेसमेंट तो। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ डिस्टेंस है उन्ना ही ਤੁਹਾਡਾ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, स्कूल घर तो स्कूल गए, स्कूल तो घर आए, यही ਤੁਹਾਡਾ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यही ਤੁਹਾਡਾ डिस्टेंस है। सॉरी, इत्थे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाऊगा। ठीक है, मान लो तुसी ए टू बी इत्थों गए, ए टू बी पोजीशन ते गए। ठीक है, बस तुसी ए टू बी गए तो इस केस दे विच तुहाडा डिस्टेंस भी ए बी है, तुहाडा डिस्प्लेसमेंट भी ए बी है। ठीक है, इत्थे केस दे विच इक्वल है, इस केस दे विच डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो वध है, इस केस दे विच भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो वध है। नैक्सट है वेलोसिटी। स्पीड होंदी है जिवें उवें ही बिल्कुल वेलोसिटी होंदी है। स्पीड ते वेलोसिटी दोनों का मतलब ही गति होंदा है। फर्क की है, फर्क ये है, यह की है रेशो है डिस्प्लेसमेंट के टाइम नाल, वो सी डिस्टेंस के टाइम नाल, यह की है रेशो है डिस्प्लेसमेंट के टाइम नाल। दूजे तरीके नाल आपां कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तुहानूं ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपां रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नूं की कहने आ, की हुंदी है, वो वेलोसिटी हुंदी है। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। वैक्टर क्वांटिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ डायरैक्शन भी ਹੋਵੇ ਤੇ मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ां ਹੋਣ। जिमें डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉजिटिव नैगेटिव हो सकता है, उवें ही वेलोसिटी भी जीरो नैगेटिव ते पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, इसकी यूनिट भी सेम होंगी है जो स्पीड की होंगी है, SI यूनिट मीटर पर सैकेंड या किलोमीटर पर आवर। CGS यूनिट की होंगी है सेंटीमीटर पर सैकेंड, पर बेसिक यूनिट की होगी तुहाडी मीटर पर सैकेंड ही होगी। इसनों आपां इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं, एग्जाम दे विच इस तरीके नाल भी लिख के आ सकते हैं, एदा ते एदा मतलब सेम है। ठीक है, मीटर पर सैकेंड भी आ सकते हैं, मीटर सैकेंड इनवर्स भी लिख के आ सकता है। ओके, नैक्सट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हुंदा है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। रेट ऑफ मैंने दस्या सी, जिथे भी वर्ड आ जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो वह मतलब की हुंदा है भी आपां उस चीज़ नूं डिवाइड कर रहे हैं किहदे नाल, टाइम नाल डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसकी रेशो लेनी है टाइम दे नाल। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की हुंदी है, एक्सेलरेशन हुंदी है। इसनूं आपां एवें भी लिख सकते हैं, रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी दी रेशो किहदे नाल लैनी है, टाइम दे नाल। इसका फॉर्मूला की हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि हुण तुसीं एक्सेलरेट करदे हो,
ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਸਕੂਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। v ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। u ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? SI ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ, ਸਿਰਫ ਸਕੁਅਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ MS ਦਾ 2 ਇਨਵਰਸ। CGS ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਟਰੈਵਲ 16 ਮੀਟਰ ਇਨ 4 ਸੈਕਿੰਡ। ਪਹਿਲੇ 4 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ? 16 ਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਨਦਰ 16 ਮੀਟਰ ਇਨ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ 16 ਮੀਟਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 16 ਤੇ 16 32, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਟੋਟਲ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਡਿਵਾਈਡ। ਟੋਟਲ ਨੂੰ 32 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਇਨ 4 ਸੈਕਿੰਡ। 4 ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਬੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਕ ਇਨ 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? 5 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਹੁਣ 10 ਮੀਟਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 4 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ B to A ਆ ਗਿਆ, ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈंने ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ A ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਿਸ A ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, ਫਿਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ 9, 0.9 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੈਕ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਵਾਪਿਸ ਆਂਦਾ ਬਟ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਇਟ ਟਰੈਵਲਸ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਏ A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ C, C ਤੋਂ D, A ਤੋਂ B ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ 10 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ B to C ਗਏ, ਇਹ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗਏ।
फिर तुसी C to D गए, ये भी 10 मीटर है, ये भी तुसी 2 सेकंड ट्रैवल किया। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस तुसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रैवल किया। 10 मीटर का 2 सेकंड, फिर 10 मीटर का 2 सेकंड, फिर 10 मीटर का 2 सेकंड, तो ये हो गया तुहाडा यूनीफॉर्म मोशन। तो इसका एक ग्राफ हुंदा है। ग्राफ किवें बनदा इसका ग्राफ बनता है, मान लो इधर है डिस्टेंस, इस साइड है डिस्टेंस तो इस साइड है अपना टाइम, तो इसका ग्राफ बनता है अपना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस पोजीशन तो इस पॉइंट तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। नॉन यूनीफॉर्म मोशन, नॉन यूनीफॉर्म मोशन की हो गया अब इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल इंटरवल डिस्टेंस। मतलब कि देखो पहला A to B गया, 10 मीटर का ही डिस्टेंस है 2 सेकंड दे विच। फिर वो B to C गया, ये भी हैगा तो 10 मीटर का, बट इनू ट्रैवल करन च लगे नू 3 सेकंड। ठीक है, जा फिर इनू फिर 2 सेकंड कर ला। हुण डिस्टेंस इक्वल है बट टाइम अलग अलग है, तो ये भी नॉन यूनीफॉर्म मोशन हो गया। जा फिर आप इस तरीके नाल भी कर सकते हैं, पहले 10 मीटर 2 सेकंड च गया। ठीक है, उस तो बाद उन्हें 12 मीटर का कर लिया 2 सेकंड, उस तो बाद उन्हें 9 मीटर किया सिर्फ 2 सेकंड दे विच। देखो डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस सेम टाइम दे विच कर रहे हैं। सेम 2 सेकंड 10, 2 सेकंड 12, 2 सेकंड 9, तो यह नॉन यूनीफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, तो यदा ग्राफ बनता है इस तरीके नाल, इस तरीके नाल। ठीक है, या फिर इस तरीके नाल भी बन सकता है। यदा ग्राफ 2 तरीके नाल बनता हुंदा है। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं आऊगा, थोड़ा जा की आऊगा, कर्व आऊगा। ये हो गया नॉन यूनीफॉर्म मोशन का। सेम वे नाल अपने कोल यूनीफॉर्म वेलोसिटी है, एकसार वेलोसिटी की है। इफ अ बॉडी पोसेस यूनीफॉर्म वेलोसिटी इफ इट डिस्प्लेसेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये नहीं आएगा। की कहते ने, कहते तुहाडे कोल एक बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल जा रही है, अगर वह डिस्प्लेस इक्वली मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नाल। जो मैं इत्थे समझाया सी, जो आ चीज़ समझाई सीगी यूनीफॉर्म मोशन लई भी वह इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम दे विच, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्हें इक्वल टाइम दे विच, तो वो यूनीफॉर्म मोशन है। बट इत्थे जिहड़ी वेलोसिटी होगी वो भी यूनीफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक, नैक्सट सेम वे नाल नॉन यूनीफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी भी कह देंगे ने। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनीफॉर्म वेलोसिटी इफ इट डिप्लेसेस अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल। वही कि पहला 10 मीटर गया 2 सेकंड, फिर 12 मीटर गया 2 सेकंड दे विच, फिर 9 मीटर गया 2 सेकंड। तो जो इत्थे वेलोसिटी यूज होगी, जी वो स्पीड यूज हो रही है, वो स्पीड नूं आपां नॉन यूनीफॉर्म कहांगे। ठीक है, नैक्सट है अपना यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब की है कि अ बॉडी इज सेट टू मूव विद यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो पहला तुहाडी वेलोसिटी सीगी जिन्नी भी सी तुसीं स्टार्ट की है 20 मीटर पर सैकेंड, ये तुहाडी वेलोसिटी सी। ठीक है, तुहाडे व्हीकल दी। उस तो बाद तुसी इनक्रीज करती 2 सेकंड दे विच तुसी इनक्रीज करती 20 इनक्रीज करती, मतलब 40 होगी। हुण इस पॉइंट ते 40 है। हुण फिर तुसी अगले 2 सेकंड दे विच तुसी फिर 20 इनक्रीज करती, हुण 60 होगी। फिर अगले 2 सेकंड दे विच तुसी 20 इनक्रीज करती 80 होगी। मतलब कि हर 2 सेकंड दे विच ओहदी स्पीड कितनी वध रही है, 20 वध रही है। तो यह हो गया यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन की होगा, अगर मान लो तुसी 20 की स्पीड नाल जा रहे हो, 20 की स्पीड नाल जा रहे हो, पहला इत्थे हो 20 की स्पीड नाल स्टार्ट किया, तुसी पहले 2 सेकंड दे विच की किया, स्पीड वधाती दी 20, ठीक है 40। फिर अगले 2 सेकंड दे विच तुसी 15 स्पीड वधाई, तो कितनी होगी 55 होगी। फिर अगले 2 सेकंड दे विच तुसी सारी 10 स्पीड वधाई, तो 65 होगी। मतलब कि हरेक इंटरवल दे विच सेम टाइम दे विच इन्हें अलग अलग स्पीड इनक्रीज की है, तो वो हो गया नॉन यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नैक्सट है इंपोर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशनस होंदियां ने मोशन दियां, 3 इक्वेशनस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस at। v की हुंदी है इत्थे अपने कोल, v हुंदी है अपने कोल फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि जो
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ v ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, u ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, u ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਹੀਕਲ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਗੀ। s ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ s। ਤੇ a ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ए नाल डिनोट करते हैं एक्सलरेशन नो। ठीक है, ये हो गया अपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, नैक्सट है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, नैक्सट है v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 अपन की ने इक्वेशंस ऑफ मोशन है। वैसे अपना मोशन वाला टॉपिक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। अपने 1-2 ग्राफ रह गए जो सिंपल, तो बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप नैक्सट वीडियो के करांगे। थैंक यू। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुसी लाइक करियो, तो सबसक्राइब करियो, शेयर करियो।